So students, now we'll take some more cases of RC network जहाँ पे कि two or more capacitor can be there or resistors are also involved और can there be कि चार्ज खुद ऑलरेडी उस पर इस्टेब्लिश हो पहले फिर इसमें बैटरी अटैच कर दें, हाउ द थिंग्स गो ऑन. तो कुछ वेरिएशंस ऑफ RC सर्किट दैट आई विल सी. The first case I am taking like that is this is the capacitor attached to a battery with resistor and battery this is the switch. Case is what? Just see, this battery is of EMFE and capacitor is initially fully charged. At t is equal to 0 पे capacitor is fully charged. ये fully charged है. उसके बाद हमने we are attaching the battery and this is the resistor R, capacitance C. Initial charge on the capacitor is capital Q. मतलब Q initial जो है charge on the capacitor it is capital Q. ये रखा गया. Once this thing is happening, how do we see the charge store on the capacitor ना. तो कैपेसिटर पे क्या चार्ज स्टोर होगा वो चीज़ हम लोग देख सकते हैं. तो राइट नाउ व्हाट आई विल से, इफ दिस थिंग इज हैपनिंग एंड आई प्रेस द स्विच एट t इक्वल टू 0 पे, आई टेक. अब मैं मान लेता हूँ कि इस पर जो चार्ज रहा होगा किस समय पे, नॉट t इक्वल टू 0 और इन्फिनिटी के बीच में कोई चार्ज था इस पर q, करेक्ट. एंड आई विल गो फॉर द लूप रूल इन द सर्किट. इफ आई अप्लाई द लूप रूल तो व्हाट आई से, पोलैरिटी दिस बैटरी विल डोमिनेट प्लस माइनस, it is plus minus, resistor में plus minus and current will go like this. If current is going I and charge is this, तो loop rule में क्या लगाऊंगा, just see. If I go for the loop rule, तो loop rule में कहोगे E minus क्या लिखूंगा, Q by C minus I into R and this value is equal to 0. E minus Q by C माइनस आई आर इक्वल टू 0. ये कंडीशन प्रीवियस एस सच इट इज़ लुकिंग करेक्ट. अब मैं इसमें क्या कह सकता हूँ देखिएगा, ई सी माइनस क्यू अपॉन सी की वैल्यू क्या हो गई, दिस इज योर आई इंटू आर, सॉरी दिस इज नॉट बाई आर, इट इज़ आई इंटू आर करेक्ट. तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इक्वल टू आई इंटू आर and I will write it as dq by dt into r. Hence further I will say it as, what can I say, EC minus q upon RC and this is equal to dq by dt. I can write further, I can write it like this correct. ये आ गया पास. अब by the battery charge is building up on the capacitor, तो मैं यहाँ पे I को क्या लिखूंगा, डी क्यू बाई डी टी ही लिखता हूँ, समझ गए. तो व्हाट आई विल राइट, जस्ट सी. तो ये आई विल राइट इट एज डी क्यू ओवर ई सी माइनस क्यू, टर्म इज लाइक दिस, डी क्यू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स एट इज डी टी बाई आर सी. दिस थिंग आई कैन राइट and I will further integrate these terms. It is a more of a basic maths we have to apply. Further what I will see, the value will be ln EC minus Q, and the value is EC minus Q ln, and ये value क्या आ जाएगी आपकी T by RC, and here because coefficient of Q is negative I will put a minus sign here ना, ये टर्म आ जाएगा आपको. तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, दिस आई विल राइट इट एज ln EC minus Q and this is equal to minus T by RC. This is the term we have written till now, ln EC minus Q and that is equal to minus T by RC. ठीक है ना, ये टर्म होगा. अब इसके बाद आई विल पुट द कंडीशन फॉर द चार्जेस और वहाँ से हम लोग रिजल्ट देखेंगे. तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ. लेट अस सी, इट इज़ ln EC माइनस Q और ये वैल्यू क्या हो गई, it is minus T upon RC. This term was here. Further what I will say, at t is equal to 0, the charge on the capacitor was Q and at any time t charge will be small q.
Hence I will put the condition here, just see ln EC minus Q minus ln EC minus capital Q, and this is equal to minus T by RC. This way I can write. Further, what can I say? It is ln EC minus Q over EC minus capital Q, and it is equal to minus T upon RC. Correct? It is like this. Further, what I will say? I will remove the log. EC minus Q over capital EC minus Q is equal to e raised power minus T by RC. Further, what I will say? EC minus Q is equal to EC minus capital Q times e raised power minus T by RC. These results we are having ना. फर्दर मैं यहाँ क्या कह पाऊँगा देखिएगा, इफ़ आई राइट तो इसको मैं लिख सकता हूँ, जस्ट सी it is EC minus Q is equal to, this is EC times e raised power minus T by RC minus Q times e raised power minus T by RC. ये टर्म हम लोग यहाँ पे कह पा रहे हैं. करेक्ट. तो फर्दर व्हाट आई विल से, if I have to write the charge on the capacitor, this value Q, I will write it as Q is equal to मैं क्या लिख सकता हूँ देखिएगा, Q is equal to I will write capital Q times e raised power minus T by RC plus I will take this on this side and it is EC into ना EC I will take common for these two results. इसके लिए कॉमन लूँगा मैं, देखिएगा I will take this EC and this EC times, if I am taking it is 1 minus e raised power minus T by RC. This thing will happen. Hence for the charge Q I can write it as capital Q times e raised power minus T by RC plus EC times 1 minus e raised power minus T by RC. So this thing we have. So this is the value of charge on the capacitor as a function of time t. तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर फंक्शन ऑफ टाइम t पे ये रिजल्ट हम लोग पा जाएंगे. अगर देखो ये t की वैल्यू 0 डालता हूँ मैं, फॉर t इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू 0 पर देखोगे द चार्ज विल बी कैपिटल Q. फॉर t इक्वल टू 0 चार्ज Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल Q हो जाएगी. ये टॉप 0 हो जाएगा दिस, एंड t इक्वल टू इन्फिनिटी पे देखते हैं हम लोग, t की वैल्यू इन्फिनिटी पे, लेट अस सी e टू पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0 एंड चार्ज small q will be equal to EC. that this term will be infinity, तो ये EC आ जाएगा. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि it is at any time this is corresponding to discharging, और ये क्या प्रूव कर रहा है, चार्जिंग. तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग बोथ आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली. दिस इज शोइंग द discharging process in the circuit and this term is showing the charging process in the circuit. So both are happening simultaneously in the circuit. तो फॉर द चार्ज फ्लो चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों यहाँ पे आ गया. ये भी एक तरीका, एक मेथड है, हाउ डू वी गो. तो थोड़ा सा एक अप्रोच देखें कैसे हमने चार्ज फ्लो ऑन द सर्किट एंड इट्स वेरिएशन विद टाइम, हाउ वी हैव ड्रॉन. ठीक है, ये रिजल्ट हम लोग कर सकते हैं. नेक्स्ट देयर इज ए केस कि ऑलरेडी अ चार्ज कैपेसिटर, मान लो मेरे पास ऑलरेडी एक कोई चार्ज कैपेसिटर है और इट इज अटैच विद ए रजिस्टर, और इसको मैंने क्या किया, देयर इज वन अनचार्ज कैपेसिटर एंड दे आर अटैच्ड. तो दिस कैपेसिटर इज ऑलरेडी चार्ज. एक कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज है, से कैपिटल Q ऑलरेडी इस पर चार्ज है एंड इट डजेंट हैव एनी चार्ज एंड दिस इज R, कैपेसिटेंस C, R इट इज C, और ये इनिशियली अनचार्ज है. दिस इज इनिशियली अनचार्ज्ड. Correct. So this is the thing here mentioned. Now we have to find the charge on this second capacitor. इस पे क्या चार्ज आएगा फंक्शन ऑफ टाइम t.
in this process if I have to see the charge on the second capacitor, this ये 1 कैपेसिटर है, ये 2 कैपेसिटर, तो चार्ज ऑन द सेकेंड कैपेसिटर Q2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t क्या आएगा, दिस वी हैव टू सी। अब ऐसा केस आ जाए तब हम क्या करें, व्हाट द वैल्यू वी हैव टू सी, तो उसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं। हाउ डू वी गो, करेक्ट। तो वंस वी हैव टू सी दिस थिंग कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर फर्दर टाइम के साथ क्या आएगा, तो इसकी वैल्यू को हम लोग कैसे देख पाएंगे, दैट वैल्यूज वी कैन सी, ठीक है। तो इसको कंडीशन सर्किट में क्या डालेंगे, थोड़ा सा इसको हमको देखना पड़ेगा, ठीक है जी। हाउ डू वी गो, लेट अस सी। तो मैं इसमें कह सकता हूँ क्या, जो चार्ज होगा एट एनी मोमेंट, लूप रूल अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो व्हाट आई विल सी, एट एनी स्टैंड एट टाइम t, एट टाइम t व्हाट हैपेंड, यहाँ से चार्ज कुछ q निकल गया एंड हियर द चार्ज इज q, तो यहाँ से जो चार्ज निकलेगा दैट विल बी डेवलप्ड हियर। तो चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर एट एनी टाइम विल बी q माइनस q, यहाँ पे q एंड करंट फ्लो इन द सर्किट इज I, करेक्ट। हियर विद टाइम चार्ज इज बिल्डिंग अप, अगर इस कैपेसिटर पे देखूंगा तो समय के साथ चार्ज इज बिल्डिंग अप, इस पे देखोगे ऑन दिस कैपेसिटर विद टाइम charge is decreasing, charge is decreasing. For any time t, if I have to write the circuit effect, I will write it as q minus q upon c, माइनस से प्लस जा रहे हैं हम लोग, here I am going from plus to minus, it is minus q by c, देखिए minus q by c, circuit current is flowing like this, plus minus, तो minus I into R and this value is 0, just see, for this capacitor q by c, q minus q by c, it is q by c minus IR is equal to 0. Further what I will write, it is q minus 2q by c is equal to I into R. Now I have to see the charge on the second capacitor. I will write the function I is equal to plus dq by dt, not minus but plus dq by dt, because here charge is increasing with time. Plus dq by dt into R I can write, ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। तो फर्दर मैं इसमें क्या लिखूंगा, दिखेगा फर्दर व्हाट आई से, इट इज q माइनस 2q अपॉन RC, RC आई कैन राइट एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू, देखिएगा दिस इज dq बाई dt, ये टर्म हमारा आ सकता है यहाँ पे, जस्ट सी दिस इज dq बाई dt, ये टर्म हमारे पास आ गया, करेक्ट। फर्दर इफ आई से आई विल राइट इट एज dq over capital Q minus 2q, now it is equal to dt upon RC. I will integrate both the terms. So what I will say here, I will get for the integration value ln capital Q minus 2q and coefficient is minus 2, तो minus 1 by 2 I will write it here, minus 1 by 2, coefficient को मैंने ऐसे लिख दिया, करेक्ट, and it is t upon RC, ये वैल्यू मिल जाएगी आपको। minus sign I can transfer there and 2 also, ln capital Q minus 2q and this value is equal to minus 2t upon RC, this value also I will write। अब आप देखेंगे I will put the conditions, क्या, at t is equal to 0, तो चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर, इस कैपेसिटर पर जो चार्ज था वो क्या था, 0 था, at time t the charge is q, I'll put the conditions here, what I will get, just see, the value will be ln capital Q minus 2q log a minus log b, तो ये हो गया आपका ln for t की वैल्यू t पे ये आ गया, माइनस फॉर t is equal to 0, small q 0 ln q and this is equal to minus of 2t upon RC. Further if I say, I will write the equation ln capital Q minus 2q by capital Q and it is equal to minus 2t upon RC. This thing I can write. तो वैल्यू आपको वहाँ पे मिल गया, I will try to adjust it here,
थोड़ा सा मैं इसको यहीं पे एडजस्ट करता हूँ, लेट अस सी। तो व्हाट आई विल डू, आप देखिएगा कैपिटल Q माइनस 2Q अपॉन Q दैट इज इक्वल टू ई रेस पावर माइनस 2T अपॉन RC, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। दिस थिंग आई कैन राइट, जस्ट सी दिस वैल्यू, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। फर्दर मैं क्या लिखूँगा देखिएगा, इट इज़ कैपिटल Q माइनस 2Q इक्वल टू कैपिटल Q टाइम्स ई रेस पावर माइनस 2T अपॉन RC, हैंस आई विल से इट एस। फर्दर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा आई विल यूज दिस, इस सर्किट को थोड़ा सा मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, हल्का सा इसको कंडीशन देता हूँ, एंड विद दिस इंफॉर्मेशन आई विल सॉल्व। सारे रिजल्ट को हम यूज़ करते हैं ज़रा। I will go again. What the condition I am getting? Just see. तो ये आपके पास आ गया कैपिटल Q माइनस 2Q एंड दिस वैल्यू इज कैपिटल Q टाइम्स ई रेज़ पावर माइनस 2T अपॉन RC, ये वैल्यू आपको मिल रही है, समझ गए। फ्रॉम हियर आई विल से दैट दिस इज 2Q की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल Q माइनस, ये देखिए 2Q में इधर लगे तो कैपिटल Q माइनस कैपिटल Q टाइम्स ई रेज़ पावर माइनस 2T अपॉन RC, दिस इज हियर आई विल से स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q बाई 2 टाइम्स 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस 2T बाई RC। तो दिस वैल्यू वी कैन गेट, वी कैन सी द रिजल्ट। एक बार आप चेक कर सकते हैं what I have written the value of charge on the capacitor, the value of charge on the capacitor is this, ठीक है। तो सेकेंड कैपेसिटर पे चार्ज विद टाइम द रिजल्ट इज दिस, तो आप ये देख सकते हो चार्ज ऑन द सेकेंड कैपेसिटर विद टाइम इज गोट लाइक दिस, ये रिजल्ट आपको आ जा रहा है, ठीक है। और इस सर्किट में अगर आप देखो द टाइम कांस्टेंट, और टाइम कांस्टेंट आप देखोगे हियर व्हाट इज हैपनिंग, बोथ द कैपेसिटर्स टाउ के साथ क्या रहा RC बाई 2, तो C बाई 2, तो दिस टू कैपेसिटर्स आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन वाली बात को ये प्रूव कर रहा है। Q बाई 2 द फाइनल चार्ज, और ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो चार्ज ऑन द सेकेंड कैपेसिटर, इफ़ आई पुट द कंडीशंस फॉर टाइम T इक्वल टू 0 पे देखो, इफ़ आई पुट T इक्वल टू 0, समझ गए, तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल बी, चार्ज ऑन द सेकेंड कैपेसिटर विल बी 0, और T इक्वल टू इन्फिनिटी इफ आई एम पुटिंग, तो फॉर T इक्वल टू इन्फिनिटी चार्ज ऑन द सेकेंड कैपेसिटर विल बी जस्ट CQ बाई 2, मतलब चार्ज विल डिवाइड हाफ हाफ, उससे ज़्यादा चार्ज इस पर नहीं जाएगा। तो दिस कंडीशंस वी कैन सी कि डिफरेंट कैपेसिटर हैं, उनके रिजल्ट फॉर्मेशन में कैसे आएगा, तो दिस दैट थिंग ऑल्सो आई हैव डिस्कस, ठीक है ना। तो अगर चार्ज मिल गया तो वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, करंट फ्लो इन द सर्किट ऑल्सो वी कैन सी, इफ आई डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन again we will get the value of current flow in the circuit, all that information capacitor के साथ energy stored on the capacitor also we can see, all these informations यहाँ से आप देख सकते हो। थोड़ा इसको चेक कर सकते हैं, what are the value of voltage, energy, charge and etc, correct। now one more case I will say something like that, कि मान लो मेरे पास कोई सर्किट ऐसा है, say it is the circuit, ये कोई रजिस्टर है and there is other resistor, there is third resistor and there is this capacitor, ऐसा कुछ अरेंजमेंट आ जाए, करेक्ट, and this battery is of EMF E, all the resistor are of same value R and is C, arrangement is like this। now if I have to see the current flow in the circuit, कैसे क्या वैल्यू आ रही, तो क्या करेंगे, what could be the time constant in the circuit and all, because there are so many resistors, one capacitor। for time constant I say, एक आइडिया आपको यहाँ पे देते हैं, for time constant T इक्वल टू टाउ जो होगा वो क्या होता है,
तो टाउ के लिए हम क्या करते हैं, वी हैव टू फाइंड द नेट रेजिस्टेंस, कैपेसिटर इज 1 और देयर आर सो मेनी रेजिस्टर्स, तो टाउ की वैल्यू हम कैसे निकालें, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। फर्स्ट केस इज शॉर्ट सर्किट द बैटरी, शॉर्ट सर्किट द बैटरी, बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दो, फर्स्ट केस। सेकेंड व्हाट यू डू, फाइंड आर नेट across plates of capacitor, plates of capacitor, ये चीज़ हम लोग करें। अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट सर्किट ऑफ द बैटरी करता हूँ तो इसको मैं शॉर्ट कर दिया, एंड आर नेट अक्रॉस टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो दीज टू रजिस्टर्स विल बी इन सीरीज। तो अगर मैं इसका सर्किट फॉर्मेशन देखता हूँ तो व्हाट आई विल सी, दिस इज द रजिस्टर, दिस द रजिस्टर, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, और यहाँ पे आपका दिस इज द रजिस्टर, और ये चीज़ आपके पास आ रही है। तो देखो दिस आर एंड दिस आर, दे आर इन पैरेलल एंड दिस सीरीज, तो आपका यहाँ पे जो आर नेट आ जाएगा, आर एंड आर, आर बाई टू प्लस आर, 3R/2, आर नेट इज 3R/2, हेंस टाउ टाइम कॉन्स्टेंट इज आर नेट इंटू सी, आर नेट क्या होगा 3R/2 इंटू सी, ये इसका टाइम कॉन्स्टेंट आएगा। आप हमेशा ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो for finding the total time constant of the circuit, and even in the steady state what you will guess, in steady state if you see the current in the circuit, यहाँ पे जो आएगा, यहाँ से कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा, टोटल करंट विल बी डिवाइडेड इन दिस टू इक्वल पार्ट। तो आप मान सकते हो कि दिस वोल्टेज डिवाइडेड ऑन दिस एंड दिस, और ये जो वोल्टेज है वही यहाँ पे वोल्टेज आएगा, यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा क्या आ जाएगा, V/2 आ जाएगा। तो मैक्सिमम वोल्टेज ऑन द कैपेसिटर इन दिस केस अगर चेक करोगे आप तो व्हाट वैल्यू विल गेट, तो मैक्सिमम वोल्टेज ऑन द कैपेसिटर इस केस में अगर आप देखेंगे तो दैट विल बी V/2 ओनली। तो यहाँ पर केस क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वोल्टेज ऑन द कैपेसिटर विल बी V/2 ओनली, और उसको मैं अगर डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट दैट, वो वैल्यू क्या आ जाएगी, वोल्टेज ऑन द कैपेसिटर V इक्वल टू V/2 टाइम्स 1 माइनस ई रेज़ पावर टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आप देखिए T/RC ना, इस पर माइनस T/टाउ, टाउ की वैल्यू क्या आ गई 3RC/2। तो दिस रिजल्ट वी हैव, ये इसका जो फॉर्मेशन आएगा शॉर्ट सर्किट और बैटरी के बाद, डायरेक्ट रिजल्ट जो मैं लिख पा रहा हूँ, दिस वैल्यू आई कैन राइट, जस्ट सी चेक द वैल्यू कि शॉर्ट सर्किट की बैटरी के बाद दोनों रजिस्टर पे हमने कैसे रिजल्ट देख पाएंगे। हाउ कैन वी सी द वोल्टेज ऑन द टू रजिस्टर्स, तो दोनों रजिस्टर पे हम लोग जो वोल्टेज देख रहे हैं कैसे लिख पाएंगे, दैट थिंग वी कैन सी, करेक्ट। तो ये रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो चार्ज या वोल्टेज होगा उसमें ये रिजल्ट हमेशा सही आएगा, ठीक है, गेटिंग दिस थिंग इज़ करेक्ट, ये रिजल्ट हमारा यहाँ पे ऐसे सही आ सकता है, ये आ गई। नाउ आई कैन प्रूव, ये तो हमने डायरेक्ट शॉर्टकट बता दिया कि डायरेक्ट यू कैन अप्लाई शॉर्ट सर्किट इन द बैटरी और आर नेट की वैल्यू ऐसे निकाल दो तो ये हमेशा सही है। अगर आपने वोल्टेज की बात कह ली और EMF तो दिया गया, तो ये ये जो V है ना, दिस V इज़ व्हाट, V इज़ कैपिटल E हियर फॉर द गिवन इन्फॉर्मेशन में कहता कि V ऑन दिस कैपेसिटर जो आता, जो भी वैल्यू आ रही है दैट इज़ E, करेक्ट। E की वैल्यू आ गई, एंड दिस इज योर बाई 2 टाइम्स 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस 2T/3RC। या चार्ज ऑन द कैपेसिटर देखते हो तो भी निकाल सकते थे, चार्ज ऑन द कैपेसिटर QC की वैल्यू क्या होगी, EC/2 टाइम्स 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस 2T/3RC। तो दिस वैल्यू ऑल्सो कैन बी सीन कि हम लोग चार्ज एंड द वोल्टेज बोथ द थिंग आई हैव रिटर्न, क्योंकि आप देखो स्टेडी स्टेट में क्या होगा, दिस विल ब्लॉक द टोटल इन स्टेडी स्टेट द वोल्टेज, यहाँ हियर ड्रॉप विल बी V/2 दैट इज हियर, और हियर ड्रॉप इज ऑल्सो विल बी E/2, ये E और V लिखना है, आप इसको भी E मान लीजिए, इक्वली ड्रॉप होगा, तो ये इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में जा रहा है। द सेम थिंग इवन आई कैन ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ दैट थिंग, इसको मैं फिर से लूप रूल से भी कर सकता था, द सेम अरेंजमेंट कैन बी डन विद द लूप रूल ऑल्सो, ठीक है, वो भी एक प्रोसेस होता है, उससे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
and I can try, I can write it also. Just see, if I have to write